of the stage 4 of the anti-pollution graded response action plan. Some of the areas in Delhi NCR had close to zero visibility. Meanwhile, there is now a war of words that's undergoing with the national capital over the pollution issue, where the Supreme Court was pulling up the Aam Aadmi Party government for the worsening air quality in the city. Chief Minister Atishi had in turn blamed the Bharatiya Janata Party-led central government taking no steps to check the stubble burning, one of the crucial highest factors that contribute to air pollution in the national capital. My colleagues have filed the ground reports from the parts of the national capital early this morning. Let's take a quick look. We are at one of the hotspot areas in the national capital. This is the area of Anand Vihar, which is a railway terminal and also the bus terminal. But right now, the air quality index is in the very serious category right now because it has been observed to be above the levels of 900, which is very alarming and very serious. You can see the visuals also that how the environment is completely engulfed in a layer of smoke right now, and people are breathing this toxic air, and health-related problems are happening, and people are facing a lot of breathing issues, coughing issues, and also itchiness in their eyes. And a blame game is happening, but it's the people of Delhi who are facing these problems on a daily basis, and it has become a very serious problem as of now. And people are coming out of their homes wearing masks because it has become difficult for them to breathe in such air. We'll try to talk to some people also, because you can see that people are coming here and going there because this is a railway terminal here present. Sir, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? So we'll try to talk to some people because you can see that some people are wearing masks also. Sir, आप दिल्ली सर फिलहाल 900 से पार AQI दर्ज किया गया है, तो प्रदूषण से आपको कुछ दिक्कत हो रही है स्वास्थ्य संबंधी? वैसे तो हमें दिक्कत नहीं है, फिर भी हम अपना मास्क लगा रखे हैं सेफ्टी के लिए। तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं वैशाली गाजियाबाद। और तो हर साल ये स्थिति बनती है सर, दिल्ली सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? दिल्ली सरकार से अपील यही है कि प्रदूषण जो हो रहा है उसको कम किया जाए। सर, आप कारण क्या समझते हैं? पराली कारण है या वाहन कारण है? क्या कारण होता है हर साल प्रदूषण? वाहन कारण है, बाकी पटाखे जो छूटे हुए हैं और दीपावली पर और छठ पूजा पर उसका भी असर हो सकता है। So not only the parali is an issue, but also the vehicular pollution can be a bigger issue right now here. सर, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यूपी में रहता हूँ। यूपी में रहते हैं, लेकिन दिल्ली आकर कैसा महसूस होता है? प्रदूषण से समस्या महसूस हो रही है? बिल्कुल, प्रदूषण बहुत लग रहा है, इसी वजह से धुंध हो रही है। इस टाइम पे इतनी धुंध होनी नहीं चाहिए जितनी धुंध अभी हो रही है फिलहाल। अब ऑफिस सुबह सुबह निकलना होता है, बहुत ज़्यादा स्मोकी फील होता है, और सांस लेने में ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है यहाँ पे। जैसे थोड़ा सा मैं अभी गया था, यूपी ईस्ट में गया था, उधर इतना कुछ नहीं है, बिल्कुल मौसम थोड़ा क्लियर है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है मॉर्निंग के टाइम पे। और आज तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि धूप निकली हुई है, हल्का सा लग रहा है। बाकी इस टाइम पे मैं डेली आता हूँ तो लगता है कि बहुत ज़्यादा धुंध है। कई बार तो विजिबिलिटी 10 मीटर भी नहीं रह जाती है अगर सुबह आप 6 बजे निकलते हो, तो दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। Right, the problems are many. The visibility right now is very less, and also this is the one of the hotspot areas. And Grab 4 has also been imposed, and several rules and regulations have also been imposed in the national capital right now. And now it has become the duty of the Delhi government and also of the citizens of Delhi to take care of these situations very strictly, because this is a very serious problem, and everyone has to take care of it. With camera person Avdesh, I am Mendi Garg for News X. ग्रैब 4 का NCR में लागू होने से गाजियाबाद में भी दिखा असर। गाजियाबाद में भी स्कूल जो है ऑफलाइन मोड पर बंद करके ऑनलाइन मोड शुरू कर दिए गए हैं। सभी जो है स्कूलों को आदेश कर दिया गया है जिलाधिकारी गाजियाबाद की तरफ से कि सभी 1 से लेके 12वीं तक के सभी स्कूल ऑनलाइन मोड पर जो है अपने संचालित होंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें AQI की, तो AQI का अभी भी जो जहां मैं खड़ा हूं ये लोनी में जो है 453 दर्ज किया है, यानी कि कल 426 था तो आज 453 हुआ है। तो इसमें भी अभी बढ़ोतरी हो रही है और प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ये जो टेम्परेचर में गिरावट आई है, कल 16 जो डिग्री था, आज यहाँ पे 15 डिग्री हो गया है। टेम्परेचर में लगातार जो है गिरावट आ रही है और हवा चलने से विजिबिलिटी में थोड़ा असर जरूर पड़ा है, परंतु कोहरे अभी भी छाया हुआ है। कोहरे का असर
जो है लगातार देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से एनसीआर में कोहरा जो है यहाँ छाया हुआ है और जिससे रफ्तार जरूर धीमी हुई है और साथ ही जिन लोगों को ये छोटी छोटी बीमारियां हैं उनके लिए अभी भी परेशानी का सबक बराबर बना हुआ है। उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, चाहे वो किसी भी छोटे बच्चे हों। अब उनको स्कूल जाना बंद हो गया है। घरों में भी जो है स्थिति अच्छी इतनी नहीं है, परंतु जो बाहर घूम रहे हैं उनसे जो है अब कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, लोनी, गाजियाबाद। नोएडा की जो हवा है लगातार खराब श्रेणी में जा रही है और बढ़ते पॉल्यूशन के कारण डीएम मनीष कुमार वर्मा ने तमाम स्कूलों की छुट्टी 23 तारीख तक कर दी है। ऐसे में देखा जाए कि नोएडा की जो हवा है लगातार खराब होती जा रही है। नोएडा का सेक्टर 62 का इलाका सबसे ज़्यादा प्रदूषित देखा गया। वहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 490 दर्ज किया गया और अन्य इलाकों की बात करें तो हर जगह 400 का आंकड़ा पार किया जा रहा है। ऐसे में जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं कोशिश करें कि चेहरे पे मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जो हवा है बेहद जहरीली हो चुकी है। पीछे मेरे मौसम आपको साफ ज़रूर नज़र आएगा, मगर इस साफ मौसम के पीछे भी आपको कहीं जहरीली हवा आप इनहेल कर रहे हैं जो आपको बीमार कर सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त खासतौर आप चेहरे पे मास्क ज़रूर लगाएं और अपने जितने भी काम हैं वो दोपहर में ज़रूर निपटा लें, क्योंकि लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़राब श्रेणी में जाता दिखाई दे रहा है। अगर आज की बात करें तो आज नोएडा के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ आने वाले 15 से 20 दिनों तक लगातार इसी तरह का मौसम बना रहेगा, यानी कि जो पॉल्यूशन का लेवल है और ख़राब श्रेणी में जाएगा। तो कोशिश करिए, अगर आपके घर में बुज़ुर्ग बच्चे हैं तो उनको अभी घर से बाहर ना जाने दें, क्योंकि जो हवा है आपके बच्चों को अंदर से बीमार कर सकता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके से चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, ये पूरे एनसीआर की बात करें, हर जगह जो हवा है वो काफ़ी जहरीली हो चुकी है। कल जितना कोहरा था वो तो नहीं है सड़कों पर, मगर जो हवा है वो काफ़ी जहरीली हो चुकी है और इस जहरीली हवा से आपको केवल मास्क बचा सकता है। कोशिश करें अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना